हाँ जी, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 62 नंबर एक्सरसाइज, वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। जो आप लास्ट 2 एक्सरसाइजेस कीतियां सीगियां 61 एंड 60, उन्हां दे विच आपां कीता सी 60 दे विच आपां गल कीती सी वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर दी, एंड 61 नंबर एक्सरसाइज दे विच आपां गल कीती सी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दी। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾइजेस, ਜਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, so some verbs are followed by a to infinitive and some by an ing form, as we covered some verbs like decided and suggested, ਆਪਾਂ suggest ਦੇ ਨਾਲ ing form ਕੀਤੀ ਸੀ and decide ਦੇ ਨਾਲ to infinitive form ਕੀਤੀ ਸੀ last exercises ਦੇ ਵਿੱਚ 60 and 61 ਦੇ ਵਿੱਚ। okay, and a few verbs like start, these verbs take either to infinitive or ing form। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 63 ਐਂਡ 64 ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਪਲਸ ਆਈਐਨਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਆਰ so many verbs, here is a list of to infinitive verbs and ing form verbs। okay, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ verbs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ to infinitive ਲੱਗਦਾ ਹੈ? agree, aim, appear, arrange, ask, beg, can't afford, can't wait जो ਆਪਾਂ last ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ठीक है, claim, decide, demand, desire, मतलब ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ tend ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है, 60 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 60 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ing ਫਾਰਮ ਵਰਬਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ can't help, can't resist, admit, avoid। okay, ਤਾਂ excuse, fancy, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਬਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। okay, ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ can't wait and fancy, there is a difference between two and where we use can't wait and where we use fancy। if you can't wait to do something, you are eager to do it, means के when we are very eager to do something, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? can't wait ਪਲੱਸ can't wait ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? to infinitive। I can't wait to see the photos you took, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। I am eager or I am impatient to see the photos। it's all about can't wait। and next we have the verb fancy। if you fancy doing something, you want to do it। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਈਗਰ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ can't wait, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਫੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ यूज़ करते हैं तो मीनिंग की होंगे? इफ़ यू फैंसी डूइंग समथिंग, मतलब कल्पना करना, ठीक है, अपने अंदर किसी को कोई काम करने की इच्छा होंगी है, यू वॉन्ट टू डू इट, तो आप करना चाहते हैं, उस टाइम आप किहड़ी वर्ब यूज़ करते हैं? फैंसी। डू यू फैंसी गोइंग आउट फॉर अ मील, इट मीनस कि भी तुसीं ये चाहते हो कि तुसीं मील दे लई बाहर जाओ, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ मील। ओके, फैंसी है जी इनफॉर्मल वर्ब है, आप फॉर्मल स्ट्रक्चर दे विच यूज़ नहीं करांगे, एंड कांट वेट आप जी फॉर्मल स्ट्रक्चर दे विच यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट वी हैव हैपन, टर्न आउट एंड प्रूव। वी यूज़ प्रूव टू और टर्न आउट टू व्हेन एक्सपीरियंस शोज़ वट समथिंग इज़ लाइक, कि जदों आपां ये दसना होवे कि कोई चीज़ किस तरह लगती है, ठीक है, किस दे वर्गी हैगी आ, तो उस टाइम आपां की यूज़ करते हैं प्रूव टू एंड टर्न आउट टू। तो प्रूव टू सिंगल नहीं, अगर पास्ट की गल है तो प्रूव्ड लगेगा। इन द एंड अर फोरकास्ट प्रूव्ड टू बी करैक्ट, तो लास्ट तो कहते साडी फोरकास्ट ने की प्रूव किया भी वो की है करैक्ट है। फाइंडिंग हैरिट्स हाउस टर्नड आउट टू बी मोर डिफिकल्ट दैन निक हैड एक्सपैक्टेड, मतलब जदों आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि फाइंडिंग हैरिट्स हाउस टर्नड आउट टू बी मोर डिफिकल्ट दैन निक हैड एक्सपैक्टेड, कि जिन्ना निक ने सोचा सी कि हैरिट का घर लभना मुश्किल है, तो कहते उस तो भी ज़्यादा मुश्किल सीगा रियल दे विच ओह, तो उत्थे आपां उन्होंने की करता कंपैरिजन करता दो चीज़ों का। नैक्सट उन्होंने कहा नोट द मीनिंग ऑफ हैपन टू। हैपन टू आप कदों यूज़ करते हैं? आई हैपनड टू सी सारा इन टाउन मीनस वैन बाय चांस और सडनली
कोई चीज़ साडे सामने आउंदी है तो उसनूं दस्सण लई आपां की यूज़ करदे हां आई हैपनड टू सी कि सडनली बाय चांस मैं वो चीज़ देखी। सडनली कोई एक्शन हुंदा है जदों, ठीक है, और बाय चांस हुंदा है, आपां नूं सोच समझ के नहीं करते, अपना वो प्री डिसाइडेड नहीं हुंदा। नैक्सट उन्होंने कहा कि टू फॉर्म्स टूगैदर वी कैन समटाइम्स यूज़ मोर दैन वन टू इनफिनिटिव और ING फॉर्म। वो कहते कि सेम सेंटेंस दे विच असीं मोर दैन वन इनफिनिटिव फॉर्म मतलब डबल टू इनफिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, ING फॉर्म प्लस इनफिनिटिव एंड इनफिनिटिव फॉर्म प्लस ING भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डबल टू फॉर्म्स ने जिहड़ियां एक सेंटेंस दे विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हां दा कोई पार्टिकुलर रूल नहीं हैगा। तो जस्ट उन्होंने कहा कि कुछ स्ट्रक्चर्स इदां दे हुंदे ने जिथे आपां उहनूं यूज़ कर सकते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिफ्यूज़ टू गिव in to the terrorists. I want to avoid hurting anyone's feeling। मतलब जिथे अपने सेंटेंस की सेंस ही इदां दी हुंदी है कि we have to use two forms together to make the sense of a sentence। I want to avoid hurting anyone's feeling, तो कहना मैं अवॉइड करना चाहना कि मैं किसी दियां फीलिंग्स नू हर्ट कर रहा जो। The man denied threatening to kill a policeman। तो कहते कि आदमी ने धमकी देने तो मना करता कि वह पुलिसमैन नूं मार देगा। ओके, तो इत्थे टू फॉर्म्स ने, इत्थे ING पहलां लगी हुई है, टू इनफिनिटिव बाद विच है, इहदे विच टू इनफिनिटिव पहलां ING बाद दे विच है, इहदे विच दोनों टू इनफिनिटिव फॉर्म्स ने। इट्स ऑल अबाउट 62 नंबर एक्सरसाइजिज। इहदे विच अपने की है थोड़ा बहुता जिहड़ा पिछलियां एक्सरसाइज से उन्होंने बारे दस्सिया गया कि टू इनफिनिटिव किहड़ियां वर्ब्स के नाल यूज़ होंदा है तो ING फॉर्म किहड़ियां वर्ब्स के नाल यूज़ होंदा है। मेनली इत्थे कांट वेट एंड फैंसी नूं डिस्क्राइब किया गया कि जो आपां किसी काम नूं करन लई ईगर हुंदे आ उदों आपां कांट वेट यूज़ करते हैं। अगर आपां कोई काम करना चाहुंदे आ वो अपने माइंड दे विच है तो उहदे लई आपां फैंसी यूज़ करते हैं। एंड हैपन टर्न आउट एंड प्रूव दा यूज़ की होंदा है कि प्रूव एंड टर्न आउट दा मीनिंग होंदा है कि जो आपां कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड हैपन टू दा मीनिंग होंदा है कि जो बाय चांस कोई जी थिंग है वो हैपन होंदी है। ओके, इस तो बाद इन्होंने 62 दे विच दस्सिया होया कि टू इनफिनिटिव जां ING फॉर्म यूज़ करनी है। तुहानूं वर्ब्स दित्तियां ने ब्रैकेट दे विच, तुहानूं पता होना चाहिए कि किहड़ी वर्ब दी फॉर्म दे नाल टू लगेगा एंड किहड़ी दे नाल ING फॉर्म लगेगी। वो सारियां वर्ब्स इधर दित्तियां होणगियां। ओके, नैक्सट उन्होंने किया होया है सेम टू इनफिनिटिव और ING फॉर्म यूज़ करनी है तो कित्थों उपर वर्ब्स दित्तियां ने उत्थों। इत्थे पार्टिकुलर लाइन की वर्ब दी हुई है ब्रैकेट दे विच। इत्थे तुसीं देखना है कि किहड़ी वर्ब किहड़ी लाइन दे विच आएगी, मतलब कि तुहानूं मीनिंग पता लगेगा जदों तुसीं सेंटेंस रीड आउट करोगे तो तुहानूं पता लगेगा कि इत्थे ए वर्ब आएगी। ओके, नैक्सट उन्होंने कहा टू फॉर्म्स टूगैदर, जो अपन लास्ट दिता सी कि टू फॉर्म्स टूगैदर यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने सिचुएशनस दित्तियां ने ते नाल ही उन्होंने ये कहा कि दोनों नूं ही यूज़ करना आपां टू इनफिनिटिव एंड ING फॉर्म नूं। ओके, फर्स्ट दे विच उन्होंने की किया यूर डिसीजन टू चेंज हॉलीडे अरेंजमेंट्स माइट अपसैट विक्की। तो कहते तुसीं हॉलीडे अरेंजमेंट नूं चेंज करना है, इहदे नाल विक्की थोड़ा अपसैट हो सकता है। यू वॉन्ट रिस्क दैट, तुसीं ये रिस्क लै भी नहीं सकते। एंड यू वॉन्ट टू वट टू यू से टू रैचल, तो तुसीं रैचल नूं किश कहना, वो की कहेगा आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क अपसैटिंग विक्की, कि मैं विक्की नूं अपसैट नहीं कर सकता, उन्होंने अपसैट करन दा रिस्क नहीं लै सकता। आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क। ओके, आई डोंट वॉन्ट रिस्क इत्थे दिता होया, वॉन्ट रिस्क प्रेजेंट दे विच है तो एज इट इज़ प्लस नाल जिहड़ी अपसैट वाली वर्ब है उहदे नाल ING लग जाएगी। आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क अपसैटिंग विक्की, तो सारे एज इट इज़ ही करने ने। ओके।